Hello, my little champions. So, class 8th, I'm once again before you with the new video and the chapter The Boon of Words. As I taught you the lesson word to word explain in first part, and in this part, second part of this video, we are going to learn it's the question answers with the full back exercise. You know, this is the lesson of Living English Ratna Sagar publication. So, guys, if you would like to watch my rest of the videos, then you can subscribe the channel and yes, press the bell icon so that you will get my coming videos with the explanation as well as with the solution also. And if you would like to watch my already uploaded videos about grammar writing section or Ratna Sagar publication book, you can subscribe the channel, go to the playlist and you can select your desired video. So let's become now on the solution of the same chapter. And one more information is there, I have uploaded all the chapters solution also on the channel, so you can select your desired video in the playlist. The very first question is complete these sentences to summarize the story. So means to say you have to complete the story of the lesson, and the very first is given to you, one statement is given like first sentence, Raman was very clever, but he got on everyone's nerves. Means he was irritating everyone. So first will come like this there. Second, the villagers were upset with him because. Why the villagers were upset with him? Because he was always playing pranks. Playing pranks means he was playing tricks with them. He was making fun of the people. Third is given here, his mother took him to a holy man who was a teacher. After his studies, he didn't know to play pranks or to play the tricks or to irritate the people. Fifth is given here, his teacher sent him to a sent him to a nearby temple to chant a mantra 3 million times. Okay, 3 million times means to say that his teacher sent him in the temple, in the nearby temple, to chant means to recite the mantra 3 million times, right? Sixth is given, the Raman prayed for goddess. Okay, Raman prayed here for goddess, and the goddess revealed herself to him. means जो goddess थी वो उसके सामने appear हो जाती है. Suddenly Raman को क्या होता है? Burst into laughter, जोर जोर से हंसने लग जाता है. The goddess got angry. अब goddess तो यहाँ पर एंग्री होगी क्योंकि कोई उसके ऊपर हंसेगा तो उसको कैसे लगेगा? बहुत गुस्सा आएगा और वो गुस्से में श्राप भी दे देती है. एंड द सेम हैपन देयर आल्सो कि द goddess got angry. goddess जो है वो एंग्री हो जाती है as she felt insulted, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी इंसल्ट हो रही है कि कोई उसके ऊपर हंस रहा है. रमन was very happy with her curse. लेकिन जब वो उसको श्राप दे देती तो रमन बहुत खुश होता है श्राप के साथ. to earn living as a gesture, क्योंकि उसको कर्ज क्या मिलता है, क्या श्राप मिलता है कि वो अपनी लिविंग जो वो अर्न करेगा कैसे? एज अ जेस्टर, एज अ फनी मैन. The goddess was so amazed. goddess जो बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है and she gave him a curse, और उसको एक श्राप दे देती है. but he took that as a joke, लेकिन उस श्राप को भी वो तो जोक में ले लेता है. Next big question is that you have to think and discuss with your partner, share your answer in the class. The very first is that his teacher was very pleased with him. But his teacher was very happy with him. Why the teacher was happy with Raman? Why was Raman's teacher pleased with him? Why Raman's teacher was happy with him when everyone else was unhappy? Means कि जो टीचर वो उससे खुश कैसे हो गया जब और सब उससे परेशान थे, और सब उससे दुखी रहते थे, और सब उससे नाखुश रहते थे, कैसे वो भी वो खुश? Raman's teacher was pleased with him. Raman's का जो टीचर था वो उससे इसलिए खुश हुआ क्योंकि when everyone else was unhappy, जब दूसरे लोग उससे unhappy थे लेकिन टीचर उससे खुश था. वो क्यों खुश था? As after his teaching, क्योंकि उसने उसके पढ़ाने के बाद now Raman had forgotten to play pranks. अब जो रमन था वो भूल चुका था कि कैसे लोगों के साथ चाल खेलते, चालाकी से बोलते या फिर कैसे लोगों को मतलब उनका मजाक उड़ाना है, वो भूल गया था. And he was good at his lesson, और जबकि वो अपने जो लेसन जो भी पाठ उसको पढ़ाते थे उसके टीचर, उनमें वो बहुत अच्छा था. That's why the teacher was pleased with him. The second question, how will I face my mother? मैं अपनी माँ का सामना कैसे करूंगा? Why would it be difficult for Raman to face his mother? ये क्यों difficult था
क्यों डिफिकल्ट था रमन के लिए कि अपनी मदर का वो फेस करना? क्यों डिफिकल्ट था भाई? क्योंकि उसकी मदर ने उसको क्या बोला था कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, जब तक तुम अर्निंग का सोर्स हासिल नहीं कर लेते, जब तक तुम अपनी लिविंग अर्न करने के लायक नहीं हो जाते और करने नहीं लग जाते, तब तक तुम मेरे सामने मत आना। ओके, सो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर रमन, रमन के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था टू फेस हिज मदर, अपनी मदर का सामना करना, एज ही डिडंट नो हाउ टू अर्न लिविंग, क्योंकि उसको अब तक ये नहीं पता था कि कैसे अपनी लिविंग को अर्न करना है, कैसे पैसे कमाने हैं, इवन आफ्टर स्टडी करने के बाद भी। तो कौन सॉर्ट आउट करता है इसकी प्रॉब्लम? लेट्स सी। सडनली आई थॉट स्ट्रक रमन एंड ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर। सडनली अ थॉट स्टक, एकदम से अचानक से रमन के माइंड में एक विचार आता है, एक थॉट आता है और वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। व्हाट वाज द थॉट? वो ऐसा क्या थॉट था कि उसको सोच करके वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है? हिज थॉट वाज, उसका थॉट क्या था? बहुत फनी है, और इसी के ऊपर सारी स्टोरी यहाँ पर फनी हो जाती है। हिज थॉट वाज, उसकी क्या सोच थी, क्या सोचा उसने? व्हाट डज द गॉडेस डू, भाई ये जो गॉडेस है, ये जो देवी है, वो कैसे करती होगी? व्हेन शी हैज अ कोल्ड, जब उसको कोल्ड हो जाती है, जब ठंड लगने के बाद नाक चलती है ना, तो जब नाक चलती है तो गॉडेस कैसे मैनेज करती होगी? हाउ डज शी मैनेज, वो कैसे मैनेज करती होगी? कैसे मैनेज करती है? विद 1000 रनिंग नोजेस, क्योंकि उस जो वो जो गॉडेस थी उसके थाउजेंड्स ऑफ हेड थे। अब जिसके थाउजेंड्स ऑफ हेड होंगे, जिसके हजारों सर होंगे, तो उसकी नोज भी तो हजारों होंगी। तो वो ये कहता है यहाँ पर कि हम तो अपनी एक ही नोज में बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं, कि हमारी एक नोज होती है और हमारे 2 हैंड्स होते हैं, तब भी हमारी जब नोज ब्लो होती है, नोज हमारी रनिंग करती है, जब हमारी नाक चल रही होती है, तब हम कितनी मुश्किल से उसको होल्ड कर पाते हैं। लेकिन ये गॉडेस कैसे होल्ड करती होगी, कैसे मैनेज करती होगी, जब इसकी नाक बहती होंगी, वो भी हजारों सरों की, ये कैसे, कौन से हाथ से कौन से नाक को ये साफ करती होगी? तो ये जो थॉट था, ये फनी थॉट उसके माइंड में आता है, ठीक है, जिससे कि वो जो गॉडेस हो क्या हो जाते हैं? फ्यूरियस मींस बहुत एंग्री हो जाते हैं उसके इस विचार पे, ठीक है। हाउ डिड द गॉडेस रिएक्ट टू हिज थॉट? सो शी वाज एंग्री, वो एंग्री हो जाती है, वो गुस्सा हो जाती है उसके थॉट पे। द गॉडेस वाज अमेज्ड एट रमन्स विट that made him see a joke even a curse, जो गॉडेस थी वो बड़ी सरप्राइज होती है कि उसने रमन को जो है, रमन से विट, रमन की जो फनी फन होने, जो उसका फनी नेचर है, उससे बहुत ही वो अमेज होती है, वो सरप्राइज होती है। that made him टू सी अ जोक, क्योंकि उसने उसको एक श्राप दिया था और श्राप के बाद भी उसने उसको एज ए जोक ले लिया। मतलब जो श्राप उसको दिया देवी ने, उसने उस गॉडेस ने, उसको भी उसने मजाक में ले लिया। तो इसमें बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है। व्हाट वाज द जोक? वो जोक क्या था? क्या जोक था? द गॉडेस कर्स्ड हिम टू अर्न हिज लिविंग एज अ जेस्टर और अ फनी मैन। जो गॉडेस थी वो उसको श्राप देती है क्योंकि उसने गॉडेस का क्या किया था? अपमान किया था, ठीक है। वो उसके ऊपर हंसा था कि अगर तुम्हारी हजारों सरों की जब नाक बहेगी तो तुम कैसे साफ करोगे? तो इस बात पे जो है वो गॉडेस एंग्री हो जाती है, और एंग्री होकर कि वो क्या करती है? उसको श्राप दे देती है। उसको क्या श्राप देती है? टू अर्न हिज लिविंग एज अ जेस्टर, कि जाओ, तुमने मेरा मजाक उड़ाया तो तुम दुनिया के सामने मजाक बनकर रह जाओगे, और तुम अपनी अर्निंग भी एक फनी मैन की तरह ही यहाँ पर अर्न करोगे। इट वॉज अ जोक फॉर हिम, और लेकिन ये भी उसके लिए एक मजाक की तरह था। किसके लिए? रमन के लिए ये श्राप भी एक मजाक की तरह था। दिस जोक अफेक्टेड हिज फ्यूचर और फॉर्चून, फॉर्चून या फिर फ्यूचर, जो उसका लक था, उसका फॉर्चून था, फ्यूचर था, इस जोक ने बहुत ज्यादा अफेक्ट किया। एंड ही वेंट ऑन टू बिकम अ कोर्ट जेस्टर, और वो जब वो कहाँ गया? वो दरबार में जाता है। कौन से किंग के दरबार में? कृष्णा देवारिया, कृष्णा देवारिया के दरबार में जाता है, जो कि विजयनगर के किंग थे। और वहां पर उसके कोर्ट में, उसके दरबार में जाकर के एक फनी मैन की जॉब उसको मिल जाती है। एंड बिकेम वेरी फेमस, और उसके बाद वो इतना फेमस हो जाता है, किसके नाम से? तेनाली रामा के नाम से। फॉर हिज जोक्स, अपने जोक्स के लिए, एंड विटी आंसर, अपने विटी मींस अपने फनी आंसर के लिए। यहाँ पर जोक्स जे लगा लेना, के यहाँ पर बाय मिस्टेक टाइप हो गया तो यहाँ पर जोक्स आएगा, के की जगह जे लगा देना, कि वो अपने जोक्स के लिए और अपने विटी, अपने अपने जो फनी आंसर, उनके लिए बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। डी क्वेश्चन, व्हाट डिड द एल्डर ऑफ द विलेज टेल रमन्स मदर? जो विलेज के एल्डर्स थे उन्होंने रमन की मदर को क्या बोला, क्या कहा उन्होंने? जो एल्डर थे वो परेशान थे उसके इरिटेटिंग नेचर से। किसके इरिटेटिंग नेचर से? रमन के इरिटेटिंग नेचर से। तो जो एल्डर्स होते हैं विलेज के, वो वार्निंग देते हैं, वार्न करते हैं रमन की मदर को, that her son would come in a sticky end, कि तुम्हारा बेटा बहुत बड़ी ट्रबल में, बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा।
कम टू अ स्टिकी एंड का मतलब होता है गेट इनटू ग्रेट ट्रबल। तो या तो कम टू अ स्टिकी एंड लगा लेना या फिर योर सन वुड गेट इनटू ग्रेट ट्रबल ये लगा लेना। मैंने इसका इजी मीनिंग ब्रैकेट में डाल दिया, तो आप दोनों में से एक लिख सकते हैं, दोनों लिखने की जरूरत आपको नहीं है यहाँ पे। द सन वुड गेट इनटू ग्रेट ट्रबल भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। इफ शी डिडंट टेक हिम इन हैंड, टेक इन हैंड मीन्स अगर वो उसको स्ट्रिक्टली नहीं लेगी, ठीक है। इफ शी डिडंट डील स्ट्रिक्टली विद हिम, कि अगर वो उसको स्ट्रिक्टली नहीं लेगी, अगर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करेगी, तो ब्रैकेट वाला या फिर इनमें से कोई भी एक लिख लेना जो आपको सुइटेबल लगे, जो आपको इजी लगे लर्न करने में। ब्रैकेट्स में मैंने इनका आंसर इजी वर्डिंग में लिखा है ताकि आपको समझ आए कि लिखा क्या है। कम टू अ स्टिकी एंड का मतलब गेट इनटू ग्रेट ट्रबल, और टेक हिम इन हैंड मींस डील स्ट्रिक्टली विद हिम, कि उसको अगर तुम स्ट्रिक्टली नहीं लोगी तो एक दिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगा। Why did the holy man help रमन? रमन की हेल्प क्यों की उस होली पर्सन ने, उस गुड पर्सन ने, गुड मैन ने क्यों की? द होली मैन, होली मैन यहाँ पे कौन है? टीचर है उसका। किसका टीचर? रमन का। जो होली मैन है, जो टीचर है, हेल्प रमन, रमन की हेल्प की। एज ही वॉज क्वाइट गुड एज हीज लेसन, क्योंकि उसने जो भी उसको पाठ पढ़ाए थे, जो भी लेसन उसको सिखाए थे, वो सारे उसने अच्छे से सीख लिए थे। एंड फॉरगॉट टू प्ले प्रैंक्स, सॉरी फॉरगॉट में आर लगाना भूल गई यहाँ पर, तो आर लगा लेना। फॉरगॉट टू प्ले प्रैंक्स, और वो ट्रिक्स खेलना भी यहाँ पर भूल गया था। फॉरगॉट, FORGOT, फॉरगॉट, वो ट्रिक्स खेलना भी यहाँ पर भूल गया था। और अपने लेसन्स में गुड था, बहुत अच्छा था, वो अपने लेसन्स में बहुत अच्छा था, और मतलब वो लोगों के साथ ट्रिक्स खेलना भी भूल गया था, तो इसलिए उसके टीचर को बहुत अच्छा लगा। इवन ही डिडंट नो हाउ टू अर्न अ लिविंग, इवन यहाँ तक उसको ये भी नहीं पता था कि अपनी लिविंग को कैसे अर्न करे, तो इसीलिए जो थे वो जो होली मैन थे उन्होंने उसकी हेल्प की थी। थर्ड इज राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर ऑफ रमन। अब रमन का कैरेक्टर लिखना भाई, यहाँ पे रमन कैसा पर्सन था? यहाँ पे रमन वॉज अ वेरी क्लेवर एंड गुड लुकिंग बॉय, बट ही इरिटेटेड एवरीवन, हर एक को वो क्या करता था? चिढ़ाता रहता था। ही वॉज ऑलवेज प्लेइंग प्रैंक्स, वो हमेशा ट्रिक्स खेलता रहता था, चाल खेलता रहता था लोगों के साथ, और मेकिंग फन ऑफ पीपल, या फिर हम बोल सकते कि वो लोगों का मजाक बनाता रहता था। ही वॉज डिसरिस्पेक्टफुल, वो डिसरिस्पेक्टफुल था, कोई भी उसका रिस्पेक्ट नहीं करता था। ही इवन प्लेड ट्रिक्स, वो यहाँ तक कि ट्रिक्स भी खेलता था विद एल्डर्स, बड़े बड़े जो गांव के लोग थे, विलेज के जो लोग थे, उनके साथ वो ट्रिक्स खेलता रहता था, चाल चलता था, चालाकी से बात करता था। ही वॉज क्वाइट गुड एट हिज लेसन, लेकिन बाद में वो अपने लेसन पे भी अच्छा हुआ, अपने लेसन भी बड़े अच्छे से लर्न किए। व्हेन ही वॉज सेंट टू अ होली मैन, जब उसको एक होली मैन यहाँ पर एक टीचर है, जब उसको एक टीचर के पास भेजा गया तो वो अपने लेसन भी बड़े अच्छे से लर्न करता है। ही मेड फन ऑफ द गोडेस, लेकिन वो क्या करता है? यहाँ पर गोडेस का मजाक भी बना लेता है, जो कि उसको शाप दे देती है। टू अर्न हिज लिविंग एज अ जेस्टर, कि जाओ तुम अपनी अर्निंग को कैसे अर्न करोगे, तुम अपनी लिविंग कैसे अर्न करोगे? एक फनी मैन बनकर ही अपनी लाइफ में तुम कुछ ना कुछ अर्न करोगे। नाउ यू हैव टू मैच द इडियम्स विद देयर मीनिंग। गेट ऑन समबडीज नर्व्स, गेट ऑन समबडीज नर्व्स मीन्स हियर annoy someone। have a nerve मीन्स यहाँ पे क्या होता है? बिहेव इन अ cheeky or rude manner। Third, have nerves of steel, have nerves of steel means here remain calm in a difficult or scary situation। Hit touch a nerve means here mention something that upsets someone, mention something that upsets someone। नेक्स्ट इज नर्व्स ऑन एज, नर्व्स ऑन एज मीन्स यहाँ पर क्या होता है? यस, फील टेंस और वरीड अबाउट समथिंग। नेक्स्ट इज सेवेंथ, स्टेन एवरी नर्व, स्टेन एवरी नर्व्स मीन्स हियर डी, ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग। एंड टेक्स अ लॉट ऑफ नर्व्स, takes a lot of nerve means here C part means requires courage and confidence। So these answers are given here also, you can notice from there answers are given already there। The next is given here, insert the verb in the bracket and you have to use a to also if required। So you can use your to as well as the first form that is given to you, where you have to use the just a hint is given here। The villagers decided to do something, तो मैंने यहाँ पर decided to do something फर्स्ट और लास्ट वर्ड भी साथ में डाल दिया, बट यू हैव टू राइट फुल सेंटेंस हियर। आपको यहाँ पर फुल सेंटेंस लिखना, मेरी तरह शॉर्ट सेंटेंस नहीं लिखने। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा कि कहाँ पे हमने टू लगाया है, कहाँ पर हमने
हमने डू कहाँ पर हमने फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है जो इन्होंने गिवन की है, जो इन्होंने दे रखी है, तो मैंने फर्स्ट और लास्ट वर्ड भी मैंने साथ में ऐड किया, बट आपको फुल सेंटेंस यहाँ पे लिखना है, लाइक द विलेजर्स डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट रमन. Raman liked to make fun of everyone, to make fun of everyone. His mother wanted him to take life a little serious. उसकी मदर चाहती थी कि अपनी लाइफ को थोड़ा सीरियसली ले, but Raman refused to change in any way. उसने रिफ्यूज कर दिया कि वो किसी भी तरीके से चेंज नहीं होगा. You must go with the wise old man. You must go with the wise old man to study. Raman's mother told him. रमन की मदर ने उसको बोला, तो man के बाद आएगा यहाँ पर to study. His teacher told him the goddess for a boon. His teacher told him to ask the goddess, कि goddess से पूछना for a boon, वरदान के लिए. मीन्स वरदान मांगना, किससे मांगना? goddess से. तो him के बाद आ जाएगा to ask. And the next is given here. You have to write once again there with infinitive. What are your plans for the evening? You can write any of the answer according to, just you have to write a to with the first form because you are writing infinitives here, right? So what are your plans for the evening? My plan is to play football in the evening. My plan is to play the cricket in the evening. My plan is to watch the TV in the evening. So anything you can write here, right? This will depends on your answers. Next, what would you like to do over the weekend? Weekend के over में आप क्या करना चाहोगे? I would like to go for a picnic over the weekend. I would like to go for a movie over the weekend. तो कुछ भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं. Next, I would like to get a doll on my birthday. आप birthday पर क्या लेना चाहोगे? I would like to get a doll on my birthday. I would like to get a bicycle on my birthday. Okay. Next is the fourth. What have you planned for the holidays? भाई holidays के लिए क्या plan है? अब ज्यादा सारी holidays है तो आप tour के लिए plan कर सकते हैं. I have planned a tour to Manali for the holidays. Okay. Next you can use there. What is your ambition? आपकी क्या ambition है? My ambition is to be an army officer. My ambition is to be an engineer. My ambition is to be a doctor. So anything you can write here. And the last is here, rewrite the passage with the correct punctuation. So what will the correct punctuation? The T will be capital. The Curries were invited by the president of France. France में F कैपिटल आएगा, president में P कैपिटल आएगा और T का यहाँ पर द का T कैपिटल आएगा. मीन्स सबसे पहले ध्यान से देखना, द में T कैपिटल आएगा, ठीक है. आफ्टर दैट द में भी T कैपिटल आएगा, यहाँ पर प्रेसिडेंट में P कैपिटल आएगा. फ्रांस में आपको F कैपिटल लगाना है यहाँ पर. टू द एलसी पैलेस, एलसी में E कैपिटल लगाना है यहाँ पर. पैलेस फॉर डिनर इन द कोर्स ऑफ द इवनिंग अ लेडी केम अप टू अ लेडी ऑफ द इवनिंग. अब यहाँ पर फुल स्टॉप आपने लगाना है, ठीक है. डिनर इन द कोर्स ऑफ द इवनिंग फुल स्टॉप. अ लेडी, अ कैपिटल आएगा यहाँ पर. अ लेडी केम अप टू मैरी एंड सैड, कम अप टू मैरी. यहाँ पर एम, यहाँ पर नेम है तो इसका एम कैपिटल आएगा. एंड सैड, और उसने कहा, यहाँ पर कोमा आएगा, यहाँ पर सिंपल कोमा. वुड यू लाइक, वुड में अब यहाँ पर डब्ल्यू कैपिटल लगा देना. वुड यू लाइक मी टू प्रेजेंट यू टू द किंग ऑफ ग्रेस. अब ग्रेस के यहाँ पर जी कैपिटल आएगा, फिर से मैरी में यहाँ पर एम कैपिटल आएगा. इनोसेंटली एंड किंग ऑफ ग्रेस, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा आपका. यहाँ पर फुल स्टॉप लगाइए, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है. देन मैरी में एम कैपिटल. इनोसेंटली एंड पोलाइटली रिप्लाइड. उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, कोमा लगाना है और आई कैपिटल लगाना है. आई डोंट रियली थिंक सो. ओके, तो सो के बाद अब यहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगाना है. आई अगेन कैपिटल डालना है. आई डोंट सी द यूटिलिटी ऑफ इट. अब यहाँ पर फिर से फुल स्टॉप लगाना है. फुल स्टॉप लगा के टी कैपिटल आएगा, द का द टी कैपिटल. द लेडी वॉज शॉक्ड एंड, फिर से मैरी का यहाँ पर एम कैपिटल लगाएंगे.
shocked and Mary suddenly realized that it was Madam Lovett, the president's wife. तो यहाँ पर मैडम लॉबेट में आपका एल कैपिटल है क्योंकि उसका नेम है अभी यहाँ पर मैडम लॉबेट, द कैपिटल प्रेसिडेंट्स में पी कैपिटल प्रेसिडेंट्स की वाइफ है यहाँ पे, तो इसका नेम का एल कैपिटल आएगा. Who had asked her the question, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे, शी कैपिटल आएगा, फिर शी blushed and said quickly उसने कहा, तो यहाँ पे कोमा और इन्वर्टेड कोमास यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा. यहाँ पर सिंपल कोमा इन्वर्टेड कोमास लगाना है. बट नेचुरली आई फिर से कैपिटल शैल, नेचुरली आई शैल डू whatever you please just as you please मैडम. तो यहाँ पर फिर से मैडम में एम कैपिटल लगाना है, यहाँ पे फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमास क्लोज करना. इन्वर्टेड कोमास बट से स्टार्ट करने हैं और मैडम पे आपने क्लोज करना है और उसके बाद लगाना है फुल स्टॉप. So it was all about the solution of this chapter. If you would like to watch my rest of the solution videos, you can go to the playlist of my channel. Thank you so much for watching the video. Have a marvelous day, everybody.